A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the chapter 1 of the class 12 accountancy, that is in financial statement of NPO. You know very well, in the last few videos we already discussed the preparation of the income and expenditure account, and in this segment we discussed the question number 19, and for of the question number 19 we prepared opening capital fund, income and expenditure account and the balance sheet, as well as we discussed the question number 21, which was asked in the year 2019 in the CBSE sample paper. So in today's video we discussed the question number 22, which are related to the preparation of the income and expenditure account and the balance sheet. And one more information for you. In today's video, firstly we solve the question number 22 as a whole. It means firstly in this video we solve the question number 22 in each and every aspect, and thereafter we will move to the very important topic which are required at the time of the preparation of the income and expenditure account, that is an adjustment of outstanding and prepaid expenses. Okay, so without creating any delay, let's we start the first question of today's video, that is in question number 22. And the question number 22 says that following is the receipts and payment account of Rajdhani Club for the year ended 31st March 2021, and the information are as follows: receipts, cash in hand 4,000, cash in deposit account 16,000, cash in current account is 5,200, subscription 80,000, entrance fees 12,000, life membership fees 15,000, newspaper sales 200, canteen collection 4,400, interest on deposit 1,600, and in the payment side we write down the staff salary 35,400, canteen expenses 3,500, miscellaneous expenses 800, insurance 2,000, telephone expenses 4,800, furniture purchase 15,000, investment purchase 46,000, and in the closing balance we write down the cash in deposit account and cash in current account. And then as any additional information, the outstanding subscription in the beginning 7,000, 5,600, advance subscription 2,000 and 2,500, outstanding salary 1,200 and 1,800, furniture is 10,000, sports equipment is 20,000, and depreciate furniture by 20% and sports equipment by 30%, and you are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as that date. And in this question, firstly, you know very well, firstly we prepared the income and expenditure account. Firstly we prepared the opening capital fund, sorry for that. In the question number 22, firstly we prepared the opening balance sheet as a working note. Okay, and the date of the opening and balance sheet is 31st March 2020. Okay, and the information are as follows. The information is cash in hand 4,000, cash in deposit account is 16,000, and cash in current account is 5,200. As well as outstanding subscription is 7,000, which is an opening outstanding subscription. Outstanding subscription is a assets. Opening outstanding subscription will be a 7,000, and advance subscription will be a, in this question is 2,000, outstanding salary 1,200, and
furniture 10,000, sports equipment is 20,000 और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे 16 4 20 27 47 57 59 59 and 5 59 7 plus 5,200 is 009 64,900 and 64,900 में से हम 3,200 डिडक्ट करेंगे तो इट विल बी 61,700 is an opening capital fund, but the answer is different. Why? Let's see the calculation. 4,000, 16,500, 7,000, 2,000 is an advance, 1,200 outstanding, 10. This will be a 10. Furniture is a 10 and 20. So 62,900. And in the 62,900, and it will be a 20,000. So the opening capital fund will be a, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आएगा, एक बार फिर से इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सो एक बार फिर से ऐड करते हैं 20 27 20 27 37 57 57 and 5,200 is 62,200 minus 3,200. Is that clear? So the answer is 59,000 as an capital fund in beginning. Okay, so you can see that the total is 62,200. So please note down the opening balance sheet in your copy properly. Now we are moving to the preparation of income and expenditure account and the closing balance sheet of this question. So you can see that how we will prepare the opening balance sheet. Now we are moving to the preparation of the income and expenditure account of this question. So let's we prepared the the income and expenditure account of the question number 22. Firstly, we drop the format income and expenditure account of the name is Rajdhani Club of Rajdhani Club on 31st March 2019. Firstly, 2021, sorry for that. So first of all, we write down the information. The first one is a 2 staff salary 35,400, जिसमें आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है 1200, एंड को प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को क्या करेंगे, माइनस। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है 1200, एंड का है 1800, तो हो जाएगा 36,000। नेक्स्ट इज कैंटीन एक्सपेंस, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज उतार देंगे इसको। कैंटीन एक्सपेंस इट विल बी 3,500, miscellaneous expense will be 800, insurance 2,000, telephone expenses will be 4,800. Furniture purchase and investment purchase is not a part of the income and expenditure account.
Now let's we move to the credit side of the income and expenditure account. Firstly, we write down the subscription, and in this question, the subscription adjustment is given. Subscription is 80,000, and you know very well, outstanding at end क्या होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का माइनस एडवांस बिगनिंग का प्लस और एडवांस एंड का माइनस. तो इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एंड का है 5,600, बिगनिंग का है 7,000, एंड बिगनिंग का एडवांस है 2,000 और एंड का है 2,500. सो इस क्वेश्चन में 9,500 माइनस करना है, 80,000 में 9,500 माइनस करना है और ऐड कितना करना है, 7,600 ऐड करना है. तो एट लास्ट अगर हम बात करें, माइनस आपको ज्यादा करना है, कितना 1,900 आपको ज्यादा माइनस करना है. सो इट विल बी मतलब 80,000 में 1,900 नेट आपको क्या करना है, माइनस करना है. सो 1,900 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78,100 एज एन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. एंड आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस है. जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, एंट्रेंस फीस को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स मानते हैं, एंड इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द वैल्यू इज 12,000. लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाती है. न्यूज़पेपर का जो सेल है वो आएगा यहाँ पे, बाई सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, वैल्यू इज 200. कैंटीन कलेक्शन ये भी इनकम है, कैंटीन कलेक्शन है आपका 4,400 और इंटरेस्ट है डिपॉजिट पे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे है आपका 1,600. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एज वेल एज ऑन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. तो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर लेते हैं. सो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे और ऑफिस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे. फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपको देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि शुरू में फर्नीचर है 10,000 और एंड में था 20,000. सो यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी, फर्नीचर परचेज हुआ 15,000, इन्वेस्टमेंट भी हुआ 46,000. तो आपको डेप्रिसिएशन जो लगाना है यहाँ पर, फर्नीचर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फर्नीचर कितना है 10,000, आपने ड्यूरिंग देयर परचेज कितना किया 15,000, तो कितना हो गया 25,000 का 20%, यानी कितना हो गया 5,000. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 था, ड्यूरिंग द ईयर आपने ना परचेज किया ना सेल किया, 20,000 का कितना परसेंट 30%, ये हो गया 6,000. अब क्या करोगे, बैलेंस करोगे, एंड आफ्टर टेकिंग अ बैलेंस यू विल फाइंड आउट द सरप्लस. सरप्लस आ जाएगा. ठीक है, कैसे निकलेगा निकाल के देख लेते हैं. 78,100, 12,200, 4,400, 1,600. तो ये देखो 4 and 5 and 6 हो गया, ये हो गया 12,200 और 78,100. तो टोटल अगर आप करोगे तो 003. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 96,300 आया क्रेडिट साइड में. डेबिट साइड में ऐसे ही टोटल करो जो सिमिलर चीज़ है, जैसे ये 615 कितना हो गया 11,000, 4,008 एंड 2 6,8 एंड 8 कितना हो गया 7,600 और 3,36,000 54,600, एक बचा था 3,500. ऐसे ही आप टोटलिंग करते हैं 58,100. अब कंपेयर करो 58,100 डिफरेंस कितना आ रहा है 2,883 38,200. यस, द सरप्लस इज
38,200 आपके सामने ही मैंने कैलकुलेशन किया है एंड यू कैन सी दैट विद इन अ सेकेंड यू विल गेट योर करेक्ट आंसर इफ योर करेक्शन इज गुड। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, इफ योर कैलकुलेशन इज गुड, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता कैलकुलेशन। आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं कैलकुलेशन में, जो आपको हार्मफुल हो सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। So when we prepare the balance sheet of this question, first of all we draw the format of the balance sheet. Balance sheet कब की? 31st March 2021. These are the table. And with the help of these table हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, बनाएंगे। बैलेंस शीट में इन दिस साइड लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सो इन द लायबिलिटी साइड फर्स्टली वी राइट डाउन दी ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस लाइक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन द एडजस्टमेंट 5,600, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,500, outstanding salary 1,200, furniture 10,000, परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर कितना, ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया हमने 15,000, तो हो गया 25। उस पर क्या लगाना था, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना लगा था 5,000, सो वैल्यू विल बी 20,000। उसी तरह से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में था 20,000, उस पर डेप्रिशिएशन कितना लगाना था 6,000, 14,000। और आपने ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टमेंट भी परचेस किया था, कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस किया था 46,000। और कैपिटल फंड है 59,000 इस क्वेश्चन का। और सरप्लस आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, surplus will be 38,200, 97,200। और जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे इसमें आपने अभी कैश नहीं लिखा, कैश इन हैंड 6,700, कैश इन डिपॉजिट्स वो भी आपका है 20,000, और कैश इन करंट अकाउंट ये आपका है 4,200। ये भी आपने क्या किया है, राइट डाउन नहीं किया था, उसको आपने राइट डाउन किया। और इसके बाद जो भी चीज़ें रिमेनिंग हैं एक बार आप रिवाइज कर लेना। कोई ऐसा तो नहीं था जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिली थी तो वो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, या फिर कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो लाइफ मेंबरशिप फीस इज 15,000 एंड सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस, न्यूज़पेपर, इसमें सब कुछ हो गया है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारी अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। तो क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लोग इन दिस क्वेश्चन हम चीज़ों को ऐड करेंगे, और जब हम ऐड करेंगे सो वी फाइंड द करेक्ट टोटल 1,16,500। So this is a solution of the question number 22, in which we firstly prepared the income and expenditure account. Thereafter we prepared the balance sheet, and we see that the total of the balance sheet will be matched. It means our question is fully corrected. Okay, so please note down this question, this solution you copy properly. So you can see that we solve a lots of the questions in today's video, and thereafter we will move to the very important topic of this chapter, that is an adjustment of outstanding and prepaid expense. Okay, so let's move to the next topic, that is an adjustment of outstanding expense and prepaid expense. And this adjustment, this example we will discuss and explain with the help of the suitable example. Okay, so let's move to the next topic.
outstanding and prepaid expenses. Okay, and the question is very clearly given. क्वेश्चन इसको पहले समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और उसमें लिखा है सैलरी, पेमेंट साइड में लिखा है बाई सैलरी, और सैलरी की 1 साल की नहीं, बेसिकली 3 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर में 16-17 की सैलरी पे की, 17-18 की सैलरी पे की, 17-18-19 की सैलरी, और जो हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया वो कब बनाया है? 31 मार्च 2018 को बनाया है। तो आपने सैलरी आपकी कितनी है, आपने करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी पे की? 20,000। करेंट ईयर की सैलरी कितनी पे की? 2,80,000। और एडवांस ईयर की कितनी सैलरी पे की? 18,000। मतलब आपने करंट ईयर में इसी साल की नहीं, 3 साल की सैलरी पे की। उसमें कुछ पैसा करंट ईयर का है, कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है तो उसको भी देख लो पहले। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग on 31st March 2017 is 25,000. Salary outstanding on 31st March 2018 is 45,000. और तीसरा दिया है एडवांस सैलरी on 31st March 2017 is 10,000. ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है इन द एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन। अब हम लोग इसको कैसे शो करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब and with the help of the additional information prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, so पहले बनाते हैं income and expenditure account। कब का एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? 31 मार्च 2018, करंट ईयर का ही बनाएंगे। तो आपको पता है सैलरी हम किस साइड शो करते हैं? इन द डेबिट साइड टू सैलरी। अब सैलरी टोटल हमने कितना पे किया? टोटल पे किया 280, 20 प्लस 18, टोटल इतना पे किया। लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ कौन सा एक्सपेंस दिखाना है? ओनली विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर, यानी पार्ट ऑफ द टोटल सैलरी विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर। तो सिर्फ हम इसमें कितना लेंगे? 2,80,000। अब इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब आप खुद देखो, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? 25, मिला कितना है? 20। यानी कि जो आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है 31 मार्च 2018 को 45, इसमें क्या है? 40,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा और 5,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये मैं बार बार समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है ना, लिखा है एज एट ऑन, यानी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 31 मार्च 2018 को कितनी? 25,000। अगर सिर्फ लिखा होता सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, तो सिर्फ वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। बट इस 45,000 रुपए में करंट ईयर का 40,000 है, प्रीवियस ईयर का 45। क्यों? क्योंकि शुरू में था 25,000 बकाया, मिला है 20,000 रुपए, तो अभी भी 5,000 रुपए बाकी है। और इस 45,000 में 5,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना होगा? 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3,80,000। तो आपको सैलरी डेबिट में कितना दिखाना है? 3,00,000। और उसके अलावा आपने एडवांस सैलरी भी दिया है, कितना? 10,000। तो आपको पता है ये, सॉरी फॉर दैट, आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो आपने काउंट ही नहीं किया है, और एडवांस कितना पे किया है आपने? 10,000। तो उसको आप लोग क्या करोगे? प्लस करोगे। एडवांस एट बिगिनिंग कितना है? 10,000।
तो ये हो जाएगा 3 लाख। यानी इसमें आपने आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड काउंट ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पर उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। लेकिन आपने आउटस्टैंडिंग एंड काउंट किया है, सिर्फ उसका 40,000 लिया है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, और जो एडवांस सैलरी है प्रीवियस ईयर में आपको इस ईयर का मिल गया था, दैट इज 10,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आपको पता ही है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें इस सब से मतलब नहीं होता है कि इस साल की बैलेंस शीट तो सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग और इसी साल का एडवांस दिखाएंगे, नहीं। हमें जब भी दिखाएंगे बैलेंस शीट कब बनाना है, एट एंड। जब 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिखाएंगे, टोटल दिखाएंगे 45,000, जिसमें प्रीवियस ईयर यानी 2017-18 का कितना होगा, 2016-17 का कितना होगा 5,000, और 2000 करेंट ईयर मतलब 2017-18 का कितना होगा 40,000, टोटल कितना होगा 40,000। और प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी आपने कितना पे किया है 80,000, नेक्स्ट ईयर से ही होगा। सो you can see that how we will show the adjustments of outstanding and prepaid expense in the books of the NPO. और apart from this, अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहें कि you have to prepare the balance sheet of the previous year, आपको previous year की balance sheet बनानी है, 31 मार्च 2017 previous year की balance sheet बनानी है। तो सिचुएशन में आपको तो पता ही है क्या करते हैं हम लोग, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी उसी को बस शो करेंगे और बिगिनिंग का प्रीपेड। तो आपने 3 चीजें यहां बनाई, बिगिनिंग की बैलेंस शीट, बिगिनिंग करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और करंट ईयर की बैलेंस शीट। ओके, so please note down this solution in your copy properly. Let's discuss the questions related to the adjustment of outstanding and prepaid expenses, and this is in question number 20 of your book. ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, या जिसे हम एडवांस कहते हैं एक्सपेंसेस। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 20, सैलरी पेड इन कैश अमाउंटेड टू 40,000, ascertain the amount chargeable to income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 from the following additional information. So you can see that हमने सैलरी कितना पे किया है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे किया हमने 40,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन, उसको माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इन उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्रीपेड सैलरी एट बिगिनिंग एंड प्रीपेड सैलरी एट एंड। इसमें अपोजिट होता है, बिगिनिंग को ऐड करते हैं, एंड को माइनस करते हैं। ठीक, एंड द वैल्यू इज गिवन, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज बिगिनिंग इज 3,000, एंड इज 4,500, प्रीपेड सैलरी एट बिगिनिंग इज 1,800 एंड एट एंड इज 1,400। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो 40,000 में 4,500 1,800 प्लस करना है, यानी 40,000 में आपको प्लस करना है 6,300 प्लस करना है, तो ये आ जाएगा आपका
माइनस कितना करना है 4400 41,900. Okay, so this value will be taken as an इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा,